नमस्कार। लाइफ एंड लिविंग में आप सभी का स्वागत है। लाइफ अच्छी है, ये लाइफ गुरु की देन है, भगवान की देन है, मगर इसको चलाने के लिए इंसान को अपना एफर्ट करना पड़ेगा अच्छे लिविंग के लिए। बचपन से सुना था कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो आज हेल्थ टॉक करेंगे। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट है, डायरेक्टर मिनिमल एक्सेस सर्जरी हॉस्पिटल मैश एंड ओबेसिटी सर्जन ऑल्सो। डॉक्टर सचिन, आपको हम स्वागत करते हैं लाइफ एंड लिविंग के इस पॉडकास्ट में। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। First and foremost, a small brief introduction. I'm Dr. Sachin Ambekar, Director Minimal Access Surgery and Obesity Surgeon at MASH Hospital. MASH stands for Minimal Access Smart Surgery Hospital at New Delhi. And I'm happy to announce that after 2 years, we have 4 hospitals all over India. First and foremost, it's a big privilege and honor to be at your podcast. With my heart, I'm thanking Sunindra Chakravarti ji and Jyotida Ghosh for inviting me to this podcast. And what got me to this podcast is, I think, the name, the life and living. It is such a beautiful but yet a very powerful sentence. Life and living. I think the day we are born, we are given a gift. And to know the meaning of life, you will only understand when you come to know what you're doing with your living. They are the two most important reasons of your life, your birth and how you led your life. I think that is a very powerful meaning. And I'm so thankful for both of you to give me such a privilege to come on this podcast. Now, life and living, I think life is given by God and the living is done by human beings on this earth. One, to find the meaning of your life and to how to lead your life to get to that meaning. What associates, what helps. I think health is one of the biggest contributors to your living in this world, your existence. If you're not healthy, can you be spiritual? Can you be a philanthropist? Can you teach others? I don't think it's possible. I think spirituality and health has to go hand in hand like twins. I think it's like your left hand and your right hand, and your body is the medium for which will transcend into spirituality or the meaning of what you do. If you are a prime minister, you have to be healthy. If you are a worker in the office, you have to be healthy. If you're sitting in a podcast, you have to be healthy. I think health, as the old adage goes, health is wealth. So I'm very thankful because I'm in love with your name of the podcast, Life and Living. I think for me also, as a healthcare professional, I teach a lot of students, I teach a lot of junior surgeons, and I teach my patients that healthy living will get you to achieve your goal and your objective in life. Without that, it is meaningless. When somebody walks into my chamber, I think I don't see them as a patient. It is very important to touch their life with empathy as they are a human being. You not only treat the disease, you're treating the family which is coming with some expectation today. So thank you so much. समोसा और जलेबी, ये टॉपिक बहुत आज के दिन में हॉट टॉपिक है। तो समोसा जलेबी कितना अनहेल्दी है और ये कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं हमारे हेल्थ पे। ओबेसिटी इज द करेक्ट वर्ड बिकॉज इंडिया इज इन द सेकंड प्लेस। As the government has now ensured a policy कि समोसा और जलेबी पे एक हेल्थ डायरेक्टिव होगा, जैसे सिगरेट्स पे थे, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डायरेक्टिव. आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद इट. But having said so, if I look at the flip side of the coin, what about the multinational companies like KFC, Subway, Taco Bell, McDonald's? Aren't they also contributing to obesity? मुझे लगता है, बिल्कुल है. केवल समोसा या जलेबी को एक दायित्व देना कि इसी के वजह से ओबेसिटी हो रही है इज नॉट करेक्ट. इट इज़ अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द लॉन्ग फूड चेन ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स. क्योंकि जब कोई समोसा तलता है, ज़्यादातर ये रेडियो पे या रोड साइड पे होता है, तो ये वही तेल को बार बार जला के वो उसी को तलते हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रांस फैट एक्यूमुलेशन. एक समोसा में लगभग 180 किलो कैलोरी होता है, बिकॉज उसके स्टफिंग्स अलग होते हैं. कोई पनीर डालता है, कोई आलू डालता है. कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं. जलेबी में 150 है कैलोरीज अगर आप एक जलेबी खाते हैं. बट व्हाट अबाउट बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज?
What about Coca-Cola? What about drinks which are being advertised all over the country today? अगर हम सोचें इस बात को, तो आई थिंक जब मैं छोटा था और जब हम बर्थडे पार्टीज में जाते तो समोसे जलेबी ही खाते थे. अगर उनके पूर्वज, अगर हम 1600 BC में, तो टर्किश जो आर्मी आई थी तो उन्होंने समोसास को एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया इंडिया में. इट वाज कॉल्ड समबोसा. It is a filling with meat because soldiers wanted energy, proteins. तो उसी को वो एक short calorie burst मिलता था soldiers को अटैक करने में, उनको एनर्जी देने के लिए. But it became a favorite food of ours in our country. समोसास या जलेबी, अब आई फील इट इज़ वेरी सिंपल लाइनिंग. कोई भी चीज़ अत्यधिक या अगर हम कहें कि इफ़ यू क्रॉस द लिमिट इज़ गोइंग टू बी एक्सेसिव. एक समोसा खा लें तो मुझे नहीं लगता कि 150 कैलोरीज में सडनली ओबेसिटी आ जाएगी. हाँ, लेकिन अगर आप समोसे के साथ एक कोको कोला ले रहे हैं, ड्रिंक्स ले रहे हैं, 3 समोसास खा रहे हैं, उसके बाद जो वो कैलोरी बर्न आउट करने की आवश्यकता है, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो दैट ट्रांसेंड्स इनटू ओबेसिटी. स्वीटनेस अगर हम बात करें, ऑब्वियसली वी आर द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड टुडे. वी हैव द मोस्ट डायबिटिक्स टुडे. रफली about 350 million are diabetics today. But what about jalebi? What about artificial sugars? What about processed food? What about cheese? What about high calorie energy drinks? For example, अगर हम Mountain Dew लें, Thumbs Up लें या कोई भी energy drinks, they are very high in caffeine and sugar contents. हालांकि बोलते हैं कि zero coke, zero sugar, but उसमें fructose तो है. There is also an understanding कि केवल हम ब्रांड करें समोसा या जलेबी इज नॉट करेक्ट. देर आर मैनी फूड्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एन अनहेल्दी लाइफ स्टाइल बिकॉज इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल. आप 10 किलोमीटर के रेडी पे जाके आप समोसा नहीं खाएंगे, बट जोमेटो पे एक क्लिक पे आपको घर पे बैठे बैठे एक बर्गर मिल जाएगा. सो आई थिंक द इंटरप्रिटेशन इज रॉन्ग. वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम कोई हाई कैलोरी फूड खा रहे हैं, वो जो ट्रांस फैट है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है, शुगर को बढ़ा रहा है, उस चीज़ को बर्न करना भी ज़रूरी है. दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो आई थिंक एक डायरेक्टिव जो एक समोसा और जलेबी में आ रहा है कि दिस इज दैट इज द ओनली कॉज ऑफ, आई थिंक इट शुड ऑल्सो ट्रांसलेट इनटू मैकडॉनल्ड्स, KFC, हाई कैलोरी ड्रिंक्स. जैसे आप एक स्टिकर लगाते हैं कि सिगरेट स्टिक्स इज अ कैंसर स्टिक, इज अ डेथ स्टिक. तो आई थिंक हर बॉटल में, हर मैकडॉनल्ड्स के डब्बे पे लिखना चाहिए कि ये इतने कैलोरीज हैं इस बर्गर में. तो एक आदमी कॉन्शियसली उठाएगा, पढ़ेगा कि वो कैलोरी, व्हाई आर कैलोरीज एंड शुगर कंटेंट्स रिटन इन स्मॉल स्मॉल राइटिंग्स. हर बंदा पढ़ नहीं पाता उसमें. व्हाई डोंट यू राइट इट इन अ मेजॉरिटी इन बिग, बिकॉज वो शायद फिर बिकेगा नहीं. सो आई थिंक देयर इज अ मोनोपोलाइजेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व्ड. इट्स जस्ट नॉट कि we are trying to lead a healthy lifestyle, but what is the monopoly of these Western country influence on us? Today, Western countries are turning vegan. They are turning into spirituality and meditation. Meditation does a rhythm in your balance. It gets your reset point. Meditation is important. But how many of us are meditating? And yoga has been the birthplace in the world is India. But how many of us do yoga? How many of us are turned vegan? How many of us are shunning the what about our thali, Indian thali, frugal food, roti, dal, sabzi, chawal, dahi, salad. That was the basic calorie which an Indian used to eat and never used to be obese. Why samosas in 1970s never caused obesity, and today suddenly samosa is being banned or has been branded as the bad boy of fast foods? No, it is not. It is the Western culture which has come into our country, giving this birth to this kind of fast food and fast life, causing the fast obesity. हमने तो कभी ऐसा बोला नहीं कि बर्गर से बहुत ज़्यादा ओबेसिटी होगी या अब वो खाना नहीं चाहिए. हाँ, नहीं ले रहे हैं. फ्रेंच फ्राइज का नाम नहीं ले रहे हैं. सबवेज का नाम नहीं ले रहे. आप माउंटेन ड्यू का नाम नहीं ले रहे. हाई प्रोसेस्ड फूड्स नहीं ले रहे. हाई कैलोरी ड्रिंक्स आप उनका नाम नहीं ले रहे. I think we have to look into each and every factor. This is a good directive, but then it should be an umbrella on all the processed foods, not only samosa and jalebi. Doctor, your hospital MASH, minimal access smart surgery. So why it is smart? I mean, why you have named it like that? So it's a very good question.
Minimal access smart surgery hospital was thought with a lot of process behind it. I think surgery should be simplified because surgery generally, अगर हम सोचें, पेशेंट बड़ा डरा डरा आता है, करेक्ट? एंड आई थिंक जब आप किसी को एक सर्जिकल ऑप्शन देते हैं, उनको हमेशा लगता है डॉक्टर साहब ये दवाई से ठीक नहीं हो सकता, व्हाट अबाउट सम अदर ऑल्टरनेटिव? So I think surgery, when it becomes simplified, doesn't become scary. And that is why smart. Smart because from the surgeon's expertise, अगर surgeon कितना भी experienced हो, 20 साल हो, 30 साल हो, लेकिन if he doesn't have the right tools in his hand, the surgery which was done 20 years back will still continue. But in today's world with AI, smartphones, why shouldn't we become a smart surgeon? I'm also keeping in touch with smartphones, but if it not is translating into surgery, then I'm not a smart surgeon. So where smart comes is that we have advanced systems, advanced surgical toys, which we are using to transform life into a more precise, healthy and happy patient. For example, we have something called a 3D 4K Rubina system, which is one of the top-notch cameras in the world today, which uses intuitive 3D camera. So, अगर एक ग्लास को आप 2 डायमेंशनल देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, और उसी चीज को अगर आप 360 डिग्रीज आप देख सकते हैं, सो यू विल नो व्हाट इज बिहाइंड द ग्लास. सो फॉर सर्जरी ऑल्सो 3D हैज ट्रांसफॉर्म्ड. द मोस्ट कॉमन सर्जरी परफॉर्म्ड इन टुडेज वर्ल्ड फॉर लैप्रोस्कोपिक सर्जन इज गॉल ब्लैडर सर्जरी, जिसमें जब पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं तो हम गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं. Now, roughly it translates into 150,000, 160,000 gallbladders are removed per day in India. Just imagine the volume. So, हर 20-30 meter में you will get a surgeon who is ready to do the surgery. But with that also comes complications which are extremely dreadful and which also can be life-threatening. Now, with an experienced surgeon, this surgery can be performed with between 55 to 120 minutes. But with the same system, I'm doing it in 9 to 12 minutes. You heard me right. 9 से 12 मिनट में हम एक मेजर सर्जरी को ख़त्म कर रहे हैं. इसका ट्रांसलेशन क्या होगा कि जनरल एनेस्थीसिया, जिसे लोगों को डर लगता है, सपोज एक पेशेंट है जो 70 साल का है, उसको ब्लड प्रेशर है, उसको हार्ट डिजीज़ है, उसको डायबिटीज़ है, उसको एजमा है. अब वही पेशेंट अगर 2 घंटे का एनेस्थीसिया लेगा, सर्जरी तो हो गई, लेकिन पोस्ट एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन, कभी कभी कुछ पेशेंट्स को सांस ना आने की वजह से शॉर्ट टर्म वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है. अब वही सर्जरी अगर मैं 12 मिनट में कर रहा हूँ और एनेस्थीसिया 12 मिनट में है, The patient is safe then? पेशेंट इज वेरी सेफ. 4 घंटे बाद वो पेशेंट उठ के बैठ के चल रहा है, लिटरली सेम डे, शाम को 7 बजे वो घर. So that is why smart. So smart is also because the armamentarium of the surgeon has to be hand in hand with today's world. When you have a smartphone, when you have a smart car, when you have a smart lock and a smart door, why not a smart surgery? So that is why MASH Hospital is transforming surgery with AI and basically this 3D which we are propagating. A lot of patients are coming from Bihar, Jharkhand, Bangladesh, Iraq, just by understanding that there is something called 3D. And once the patient has experienced it, he's sending me 10 more patients कि नहीं उस डॉक्टर साहब के पास चले जाइए, because उनके पास 3D कैमरा है, जिसको पहले पता ही नहीं था कि 3D कैमरा क्या होता है. So that is what we are doing in New Delhi, in the heart of New Delhi today. And also which I wanted to say that the affordability, the same thing in a bigger hospital would transform into 2.5-3 lakhs of money. I'm also doing for patients for 40,000-50,000 rupees. We are not letting the patient get under the burden of 3D. That is my responsibility. But we are transforming his life with this kind of thing or this kind of advancement at a minimal cost. Because we want to transform lives. Health should actually be free. Health concerns or health answers or surgeries should be free to the world, because we have been given a God's gift to transform lives. Unfortunately, that cannot happen. But what we can do is cut the cost to a bare minimum, where anybody who walks in gets an affording treatment and the most advanced treatment. So that is why it is called Smart Hospital. ब्यूटीफुल नरेशन डॉक्टर. हम
अनस्मार्ट खाते हैं और आप स्मार्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये वाला चीज़ हमारी लाइफ एंड लिविंग में पहली बार हो रहा है कि हम एक बहुत स्मार्ट डॉक्टर के साथ बैठे हैं, स्मार्ट सर्जन है वो, और स्मार्ट सर्जरी करके आप लोगों को बेहतरीन ज़िंदगी दे रहे हैं। ओबेसिटी की बात में आते हैं सर। इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड रैंकिंग पोजीशन में है। यस, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? America long back understood that obesity was becoming very prevalent, including in teenagers, in young adults, and they became a financial burden for the country. तो उनके ऊपर पैसे खर्च करना, वो डायबिटिक हो रहे थे, उनके दवाइयों पे खर्च करना, सोशल टैबू होना। ओबेसिटी में पेशेंट लूजेज हिज सेल्फ एप्रिसिएशन। उसको लगता है कि मैं सिनेमा हॉल में फिट नहीं आ सकता आ सकती, तो मैं कैसे बैठूंगी वहाँ पे, सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाना। ओबेसिटी स्टार्टेड बिकमिंग अ वेरी क्वेश्चनेबल डिजीज, एंड अमेरिका देन ट्रांसफॉर्म्ड ओबेसिटी not as a lifestyle problem but a disease. It was termed as a disease, and today we are fighting this all over the world. India is the diabetic capital as a forefront. It is slowly becoming an obesity capital of the world. Roughly in 2022 एक Lancet के journal में astonishing था कि 44 million women are obese in India. 26.3 million people of men are obese in India. 12.5 million children are obese in India. तो आप सोच सकते हैं कि कितना स्टैगरिंग नंबर्स है। ये 12% तो पता नहीं बच्चों के लिए तो कहाँ तक पहुँच जाएगा। मतलब अगर आप सोचें कि ओबेसिटी हैज बिकम द डिजीज, इट्स बिकम लाइक कोविड, इट्स अ पैंडेमिक एंड देयर इज नो वैक्सीन फॉर इट। पीपल फाइंड कि हाँ ये ड्रग्स हैं, वो हैं, बट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म एक पेशेंट कितना वेट लॉस ड्रग ले सकता है? कभी ना कभी तो थक जाएगा, नहीं ले सकता। आई थिंक ओबेसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिपलिंग डिजीज टुडे, क्योंकि ओबेसिटी के साथ, मोटापे के साथ आप सोचे क्या क्या चीज़ आपके शरीर में बदल रही है। फैट जो बाहर दिख रहा है उतना फैट अंदर भी तो है, आपके लिवर पे, पैंक्रियास पे, लंग्स पे, आपके हार्ट पे। हार्ट अटैक या आर्थरोस्क्लेरोटिक डिजीज, जो फैट प्लग्स जाके होल को बंद करते हैं, आर्टरीज को मेजर, तभी तो हार्ट अटैक होता है। करेक्ट? अगर आप सोचे पैंक्रियास, तो इंसुलिन कम होता है, पेशेंट डायबिटिक बन जाते हैं। या आप एक ये सोचिए, एक क्रिकेट बॉल है, उसके ऊपर 2 तीलियां, मैच स्टिक, घुटने चले गए आपके, क्योंकि इतना वेट लेके ये जो नी जॉइंट है वो चल नहीं पाते हैं, वेयर एंड टेयर हो जाता है। तो बहुत जल्दी विद इन 2 years दे ट्रांसफॉर्म फॉर नी रिप्लेसमेंट्स, हिप रिप्लेसमेंट्स. So obesity is connected to a multifocal point of diseases which is attacking your body. शरीर का एक चीज खराब हो रहा है तो लगातार हर एक चीज में फर्क पड़ रहा है. क्योंकि जो मोटापा आपको बाहर दिख रहा है, आप सोचिए वही मोटापा अंदर भी तो है. आपके हार्मोनल बैलेंसेस कम हो गए, आपके गट के हार्मोन्स कम हो गए, स्लीप डिप्रिवेशन हो गया. सबसे ज्यादा क्या होता है कि जब आदमी मोटा हो जाता है तो नेक गर्थ या जिसे हम ये नेक वो गायब हो जाता है, पेशेंट का ऐसा हो जाता है. व्हाट डज दैट लीड टू? स्नोरिंग. व्हाट इज आल्सो ट्रांसफॉर्म्ड एज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. इसका क्या मतलब है? पेशेंट जब हम सोते हैं सर्केडियन रिदम में तो ऑक्सीजन ब्रेन की तरफ जाता है, करेक्ट? बट अगर हर 3 मिनट में आपका वो रिदम टूट रहा है तो उतना कम ऑक्सीजन ब्रेन में जाना है, तो दिस इज ट्रांसफॉर्म्स इनटू स्नोरिंग. अब यही पेशेंट जो हैं सुबह उठते ही जब सारे लोग 11 बजे और अलर्ट, ये पेशेंट झपकियां मार रहा है बिकॉज रात को सोए नहीं कम. अब धीरे धीरे ये कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? विद इन 3-4 years बिकॉज हाइपोक्सिया हो रहा है ब्रेन में, ऑक्सीजन कम जा रही है बिकॉज ऑफ हिज स्लीप एपनिया. अरे वो चाबी कहाँ रखा मैंने? अच्छा वो मासी का नाम क्या था? दे हैव शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस. सो जस्ट इमेजिन ओबेसिटी इज टचिंग एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी. इट इज अ वेरी ड्रेडेड डिजीज, मच वर्स देन कैंसर. बिकॉज कैंसर को पता करने में तो टाइम लग रहा है, कुछ को तो आप निकाल भी सकते हैं, कुछ के इलाज भी हैं, बट ओबेसिटी इज ट्रांसफॉर्म. मैं अगर ओबीज हूँ और मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं क्या खा रही हूँ, कैसे लाइफ पूरा अपना दिन कैसे बिता रही हूँ, स्पेंड कैसे कर रही हूँ पूरा दिन, मेरा दिनचर्या जिसको हम कहते हैं, तो वो तो हमारे हाथ में है. और हाँ. मैं ये बहुत बार देख चुका हूँ कि एक मेटाबॉलिक सेट पॉइंट होता है बॉडी, जिसको हम थर्मोस्टैट कहते हैं. जब वो थर्मोस्टैट एक पॉइंट पे आ जाता है तो आप कुछ भी करें, वेट
एक्सरसाइज करें, डाइटिंग करें, वो सेट पॉइंट वापस नहीं आ पाता, अनफॉर्चुनेटली. एंड दैट इज हाउ वी interfere as pediatric surgeons to get your metabolic set point to the reset. That's an important line because हम जो भी आपके metabolic diseases हैं, हम उसको reset कर रहे हैं to the normal set point. So obesity is not only obesity, it is a metabolic disease. Blood pressure high हो जाता है, cholesterol high हो जाता है, diabetes high हो जाता है, आपके किडनी फेलियर्स हो जाते हैं, मैक्रो और माइक्रोवैस्कुलर जो ब्लड वेसल्स में कमी हो जाती है, तो बहुत सारी ब्लॉक हो जाते हैं, आपके जॉइंट्स खत्म हो जाते हैं. तो ओबेसिटी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम व्हिच आई फील. डॉक्टर, हमने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि आजकल के दिन में बच्चे जो है छोटे, जो कंपलसरी था हमारे टाइम में खेलना, शाम के टाइम खेलने जाओ, पार्क में जाओ, पार्क नहीं हो तो आंगन में खेलो, वो खेलने का जो सिस्टम है शाम को नहीं, वो डिसअपियर हो रहा है. एंड बच्चे ज़्यादातर अपना टाइम अपना टीवी में, लैपटॉप में, टैबलेट्स में और स्मार्टफोन में ज़्यादा दे रहे हैं. तो ये ओबेसिटी का ये भी कंट्रीब्यूशन है क्या स्मार्टफोन्स? सुनित्रा जी, दैट इज सच अ वैलिड पॉइंट टुडे. आई थिंक हर घर में, शायद मेरे अपने घर में भी मैं देखता हूँ कि मेरा छोटा बेटा ज़्यादातर स्मार्टफोन या टैबलेट्स पे कुछ ना कुछ देखता रहता है. एक टाइम था जब हमारे पास नहीं थे, बट हम गली कूचे में क्रिकेट गली, पिट्ठू, छुपन छुपाई हम खेलते थे. वी यूज्ड टू बर्न आवर कैलोरीज. बट आजकल हम पार्क्स में ज़्यादातर खाली बुजुर्ग या लोगों को देखते हैं जो वॉक के लिए जा रहे हैं, बच्चे बहुत कम हैं. I think smartphone has become a necessary evil. I would coin that as that. It's a necessary evil. उसके बिना नहीं रह सकते, but it is evil. Evil क्योंकि I think बच्चों के हाथ में फ़ोन देना बहुत easy हो जाता है. माँ बाप को जो वर्किंग माँ बाप हैं कि थके हुए आते हैं, टाइम नहीं मिलता, तो चलो यार तुम देख लो, मुझे अपना काम करने दो. खाते समय बच्चे अपना मोबाइल लेके जाते हैं, तो खाने की जो लॉन्जिटिविटी है, जो कैलोरी बर्न होनी है, जो जल्दी खाना होता है, वो 1-1.5 घंटा बस वो खाए जा रहे हैं, राइट. एंड समटाइम्स दे ईट एक्सेसिव फूड इसी के चक्कर में कि वो सीरियल खत्म ना हो जाए, मम्मी और दो, करेक्ट. और दूसरी बात ये है कि बच्चे स्मार्टफोन को लेके अपने टॉयलेट में भी बैठे रहते हैं. आजकल हमने देखा है कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, राइट. एंड थोड़े और बड़े हो जाए तो जोमेटो एक्सेसिबल हो जाता है. घर पे कोई है नहीं तो जोमेटो आपने ऑर्डर कर लिया. तो आई थिंक ओबेसिटी अगेन इज लिंक्ड टू अ लॉट ऑफ दिस नेसेसरी इविल, क्योंकि जब आपके हाथ में एक माध्यम है जो आपको पूरी दुनिया आपके हाथ में समेट के ले आ सकती है, तो आप बाहर क्यों जाएंगे? तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है ना बैडमिंटन खेलने के लिए, ना सभी तो नहीं, बट एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ देम, कि वो नहीं जाते हैं, वो सीरियल्स देखे रहते हैं. Again, that is transforming into a laxity of their genes, कि वो obese ज़्यादा हो रहे हैं, पेट ज़्यादा बाहर निकल रहा है, बहुत ज़्यादा खेल नहीं पाते. तो I think again, smartphone, smart world is transforming our children into unsmart children because of obesity. So I think yes, it is very difficult. मैं एक और चीज़ जानूंगी आपसे. ये 8 to 8 हम कहते थे ना, ये जो हमारा पुराना लाइफस्टाइल, हाँ पुराना लाइफस्टाइल था. अब उसमें हमारे पास ऑप्शंस कम थे, और आजकल देखिए 8 to 8 में आप लगभग लैपटॉप लेके आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो. हाँ, वो नहीं हो रहा. 10, 1 and 10 हम ये सोच सकते हैं. यस. तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा आपने ये कहा, 8 to 8. इसमें लाइफस्टाइल कैसे लोग कर सकते हैं जिनको 9 बजे से शाम की 6 बजे तक लैपटॉप लेके बैठना भी पड़ेगा ऑफिस के लिए, बिकॉज ऑफिस से लेट आते हैं, कैसे करेंगे ये? आई एग्री. देखिए, बहुत पहले हम बोलते थे कि 8 to 8. इसका मतलब ये था कि 8 बजे सुबह आपने ब्रेकफास्ट करना है, 2 बजे अपना लंच करना है, और 8 बजे रात को अपना डिनर करके सोना है. बट आई थिंक विद टुडेज वर्ल्ड बड़ा मुश्किल है. आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं जो अच्छा. दूसरी बात है कि ट्रैवल टाइम, तो सपोज मैं रह रहा हूँ सीआर पार्क में और मैं काम कर रहा हूँ गुड़गांव में. अब अगर 6 बजे वहाँ से मैं छूटता हूँ
तो घर आते आते तो 9, साढ़े 9, 10 बज जाते हैं, चाहे आप किसी भी माध्यम से आए, चाहे मेट्रो हो या कार हो। तो 10 बजे आके आदमी चकनाचूर होके 11 बजे खाना खा के सो जाता है। अगेन देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट बर्निंग ऑफ दैट कैलोरीज, वो नहीं हो पा रहा। एंड खाने का जो समय नियंत्रण समय पे नहीं हो रहा, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अदर फैक्टर्स ऑल्सो। इट इज लीडिंग टू हार्ट डिजीजेस, इट इज लीडिंग टू ग्रेड 2 फैटी लिवर। जो आप अल्ट्रासाउंड्स कर रहे हैं, आप देखिए हर बंदे को, हर एक आदमी में ग्रेड 2 फैटी लिवर पता चल ही रहा है। ये वेरी कॉमन हो गया, ग्रेड 2 फैटी लिवर, ग्रेड 1 फैटी लिवर, क्योंकि अगेन द ट्रांसफॉर्मेशन लाइफस्टाइल की आप नियंत्रण समय पे खाना नहीं खाएं। तो ज़्यादातर मैं यही कोशिश करता हूँ पेशेंट्स को ये बताने के लिए कि कैरी सम पार्ट ऑफ योर फूड टू द वर्क। जब आप उस कार में आ रहे हैं 7:30, 8 बजे, तो कोशिश करें एक सैलेड, एक फ्रूट, एक रोटी या कोई भी ऐसा आइटम जो पेरिशेबल ना हो, वो ज़रूर खाएं, ताकि जब तक आप घर आएंगे वो आधी भूख मिट जाएगी और आप ओवर एक्सेसिव खाना नहीं खाएंगे। तो मुझे यही लगता है कि बैलेंस वर्क लाइफस्टाइल ईटिंग मुश्किल है, बट नॉट इम्पॉसिबल। डॉक्टर देखिए, अभी ये जो वर्क फ्रॉम होम की स्टाइल जो आ गई इंडिया में, तो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उसमें तो 4-5 घंटे आप लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, उससे भी ज़्यादा कई टाइम हो जाता है कि 7-8 घंटे आप बैठे हैं। तो फिर पीपल थिंक कि हमारे रेमेडी है कि हम शाम को जब ख़त्म हो गया ऑफिस में जिम के लिए जाऊंगी या जाऊंगा। तो हाउ दैट इज़ हेल्पफुल फॉर आवर इंडियन लिविंग स्टाइल जो है जिम। इवन टुडे इफ यू रेड, आई थिंक इंस्टा पे या फेसबुक पे आप कितने, हमने ये इंस्टेंसेस देखे कि यंग लड़के हार्ट अटैक से मर रहे हैं। Why? Because it is a pressure cooker lifestyle। और आप जिम में सोचते हो कि जैसे ही मैं जिम जाऊं तो मैं जॉन अब्राहम बनूं। इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम देख रहे हैं कि कितने यंग पेशेंट्स 35, 24, 28 suddenly collapsed in the gym with heart attack. Reason because the pressure situation is so much that 2 hours of gym is adding to the pressure. अगर आपका लाइफस्टाइल ये है कि आपका वर्क एथिक ये है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आई थिंक इवन देन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक अ ब्रेक. You can stop the Zoom meeting for 10-15 minutes, start getting up, circulating, do some stretching exercises, have a healthy snack. You have to give some time to your body, because आप body को wind करे जा रहे हैं, but unwind नहीं हो पा रहा. वो spring टूटेगा, ज़रूर टूटेगा. So it is very important to understand your body language. जब हम young होते हैं तो एक घमंड होता है कि I can do anything and everything, but that translates worse when you're getting older and older. Then you realize, but वो time वापस नहीं आ सकता. वो काश हम बोलते हैं वो नहीं आ सकता. So I think it is very important for the youngsters to understand earning money, being powerful, able to buy let's say a Zara today, going to US, posting on Instagram. If these are the definition of your goals today, then health is compromised. I think health should be one of the most important part today, where health is your wealth. Wealth is not wealth. ये important है. I think ये समझना बहुत important है दर्शकों को, youngsters को, कि जो आज हम बात कर रहे हैं, चाहे आप 5 मिनट के लिए भी ये podcast देखें, but understand the takeaway message. Health is wealth. That is why it is life and living. True, very true, doctor. मतलब अभी ये समय आ गया है कि इंडिया में जो लोग रह रहे हैं, जो इंडियंस हैं, वो कम से कम अपने दिमाग में इसको बैठा लें कि अपना शरीर अगर चला गया, ये दोबारा ये हेल्दी शरीर नहीं आएगा. और जितने भी आप उसको रीसेट की कोशिश करें, वो नहीं आ सकता. 4-5 ऑपरेशन शरीर में हो जाएगा, मगर वो बैलेंस नहीं हो पाएगी. कहीं ना कहीं कमी टूटता है, क्रैक आता है, क्रैक दिखते हैं, दरार दिखते हैं. आप टेप लगा लें, ग्लू लगा लें, दरार हमेशा रहेगा. उस दरार से बचने के लिए अपने नाजुक से शरीर को बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है. ये समझना पड़ेगा. जब तक ये नहीं समझेंगे, बैठे बैठे ऑर्डर करके खाएंगे, तो अपना ही नुकसान वो उठाते रहेंगे. डॉक्टर, स्लीप भी बहुत ज़रूरी है, हमने सुना है, तो आप हमें बेहतर बता पाएंगे कि स्लीप कितना ज़रूरी है? देखिए, स्लीप इज़ योर सर्केडियन रिदम, इट इज़ योर रीसेटिंग, इट इज़ योर कामिंग पॉइंट, इट इज़ द मेडिटेशन ऑफ योर बॉडी. व्हाट इज़ मेडिटेशन?
When you deep breathe, when you slow down your reflexes, when You you're not- relax. you relax. Yes. So sleep is the God-gifted meditation given to you by nature. तो अगर इस मेडिटेशन को आप भंग करें, मेनका जैसी चीजें, जैसे स्मार्टफोन हो गया, राइट? Right. क्योंकि अगर आपको ब्लू लाइट एग्रीवेट करते हैं 10 बजे के बाद, अब 11 बजे तक रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, बट जो वाइट लाइट है, इट्स न्यूरो ट्रांसमिटिंग द सिग्नल्स टू द ब्रेन इज एक्टिव. तो आप चाहे 12 बजे भी लाइट ऑफ करें, आपका जो रिदम है वो कम हो गया. आप नहीं सो पाओगे 2 बजे तक. आधे लोग ये सोचते हैं कि मैं 12 बजे तक सो नहीं पा रहा, मैं 2 बजे रात तक जगा हूँ. बट हु इज गिल्टी फॉर इट? इट इज दैट मोबाइल विच यू कैचिंग इन योर हैंड. पहले ज़माने में अगर आप सोचें, जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो हम 7 बजे खाना खाते थे अंधेरे लालटेन में, हमारे पूर्वज, और उससे एक हेल्दी लाइफस्टाइल था. दे नेवर यूज्ड टू पुट ऑन वेट, कॉन्स्टिपेशन नहीं था, कैंसर्स नहीं थे, और 8 बजे अंधेरे में वो लोग सो जाते थे, लेकिन उठते थे 4 बजे 5 बजे. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, क्योंकि अगर आप अपने बॉडी को सेट और रीसेट पॉइंट के बीच में अगर वो जो स्लीपिंग मेडिटेशन नहीं करेंगे, इट विल डिस्टर्ब ऑल द बैलेंसेस इन योर बॉडी, योर हार्ट, योर लंग, योर लिवर, योर ब्रेन. So I think sleep is the most important factor today for any disease, to cure any disease. If you are sleeping healthy, believe me, you will not need a psychiatrist, you will not need a psychologist, you will not need medicines like sleep pills. You just need to make sure, keep your mobile away after 9:30, 10. Nothing is more important. वो मेल आप कल सुबह भी चेक कर पाओगे, बट सोना करेक्ट टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है. It also regulates your blood pressure, your thyroid metabolism. So sleep is very important, Sunitra ji. डॉक्टर, इसके मतलब आपके जो बातों की निचोड़ है, मैं एक लाइन में बता रही हूँ कि हमें हेल्दी रहने के लिए जी. हमें टाइम से करेक्ट खाना पड़ेगा, टाइम से सोना पड़ेगा, और ये जो जितने भी आपने इविल चीज़ बताया ना, जो स्मार्ट इविल चीज़ जो हमें अनस्मार्ट करे, हाँ, नेसेसरी इविल्स जो है, इसको भी एक टाइम तक यूज करके, लिमिट. सो पूरी चीज आके रुकती है लिमिट पर. अभी मैं आपसे एक बात पूछूंगी, ये जो इन्फ्लुएंसर्स जो है, इतने इन्फ्लुएंसर्स आपको बहुत, यस, हाँ, जितने भी मीडियम है हमारे पास, सभी में इन्फ्लुएंसर्स हैं. तो ये इन्फ्लुएंसर्स की जो बातें हैं, ये आर दे मिसगाइडिंग अस और दे रियली गाइड अस? आज के ज़माने में इट्स वेरी इजी टू सेट अप योर ओन मीडियम. आई थिंक मैंने देखा है कि आजकल चिल्ड्रन, यंगस्टर्स आर फाइंडिंग एन ईजी मनी थ्रू दिस यूट्यूब चैनल्स. सो उसके ज़रिए जो वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, इज दैट इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. हाउ मेनी ऑफ देम आर क्वालिफाइड टू एक्चुअली गाइड यू? Now when it comes to health, we have influencers telling you, I have this मिश्रण, if you use this concoction, शुगर आपका कम हो जाएगा, करेले की लीज में ये डालो, अगर आप पानी इस समय पिएंगे तो ये बेटर होगा, और क्रैश डाइट कितना अच्छा है, कीटो डाइट कितना अच्छा है, ऑयल डाइट कितना अच्छा है. आई थिंक इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद, इंटरमिटेंट फास्टिंग आप मान लें, there are a lot of benefits. Yes, they are proven subject जहाँ पे intermittent fasting करते थे. और अगर आप देखें तो intermittent fasting का जन्म भारतवर्ष में हुआ. वो क्या था? कुछ नहीं था. सोमवार का व्रत, महाकाल का व्रत, करवा चौथ का व्रत, ये सारे intermittent fasting ही तो थे. सन्यासीज, ऋषि मुनीज intermittent fasting ही तो करते थे. उनकी longevity कैसे बढ़ती थी? By removing the toxins, detoxifying by doing an intermittent fasting, which is a science. But हालांकि आज जो influencers इसको misinterpret करके काफ़ी लोगों को बोलते हैं. I have lot of patients coming to me कि सर 3 महीने पहले या 3 साल पहले जब हमने अल्ट्रासाउंड किया था तो हमें किडनी स्टोन्स नहीं थे, हमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स, सडनली हेल्थ चेकअप में आ गया. इफ़ यू गो बैक इनटू द हिस्ट्री, डीप डाइव इनटू द हिस्ट्री, और आप पता करें, हाँ सर मैंने क्रैश डाइटिंग की थी, मैंने कीटो डाइटिंग की थी, मैंने फलाना डाइटिंग किया था. हर डाइटिंग में एक प्रमुख चीज़ होता है, या तो प्रोटीन ज़्यादा होती है, या कार्ब ज़्यादा होता है, लो फैट होता है, हाई फैट. सो दिस सडन पीक ऑफ मेटाबॉलिज्म इज नॉट गुड फॉर द बॉडी. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी आप देखें बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं,
साइड इफेक्ट्स जैसे डिजीनेस होना, लाइट हेडेडनेस होना, लिथार्जी होना, किसी को ब्लड प्रेशर है तो बहुत लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, पता नहीं चल रहा, दवाई खा रहे हैं और लो हो गया, बाहर गए गिर गए। तो आई थिंक एवरीथिंग हैज टू बी इन चेक एंड बैलेंस। तो उसके मतलब उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जिनका ऑलरेडी लो ब्लड प्रेशर है वो I think you have to choose and understand the science behind it. आप blindly किसी चीज़ को नहीं फॉलो करते। जब भी आप कोई किताब उठाते हैं पढ़ने के लिए तो आप पूरी किताब तो नहीं जानते, आप टर्न ओवर करके उसका संक्षेप पढ़ते हैं। जब भी कोई चीज़ आप खरीदते हैं या तो लेबल देखेंगे या तो उसका थोड़ा सा आप थोड़ा सा सोर्स पढ़ेंगे कि कहाँ से आया है। कोई खाना खाओगे तो आपको 2-3 चीज़ें उसके बारे में पता होनी चाहिए। तो आई थिंक इंटरमिटेंट फास्टिंग या क्रैश डाइटिंग हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ दैट डाइट, वेदर इट इज सूटेबल फॉर यू और नॉट। हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए नहीं बनाई गई, वो इम्पोर्टेंट है। सो आई थिंक फास्टिंग इज अ वेरी गुड थिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज गुड, बट know what is your body, what diseases you have, is it good for you, speak to a professional. I think to reach to a doctor or a good nutritionist or a good physician is important to understand कि सर मुझे फास्टिंग की ज़रूरत है या नहीं है, ये मैं ओवरवेट हूँ या ओबीस हूँ। पीपल वहाँ भी कंफ्यूज होते हैं। लोग आते हैं कि सर मेरा इतना किलो है, मुझे सर्जरी करनी है, बट यू आर नॉट नीडेड दैट सर्जरी, आप ओवरवेट है, ओबीस नहीं है। तो जो कंफ्यूजन ये जो मीडिया क्रिएट कर देती है इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, हालांकि नॉट ऑल ऑफ देम, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पिक एंड चूज, वो बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्टली यू नो योरसेल्फ फर्स्ट, यस, वो नहीं करके हम बाहर से करेला का जूस हम सुबह सुबह, हमारा ब्लड प्रेशर तो नीचे चला जाएगा। ये व्यक्ति को नहीं पता है कि जुम्बा आपके लिए अच्छा है, लेकिन कूदते समय करते समय अगर आपका एंकल ट्विस्ट हो गया तो स्प्रेन हो गया आपको, राइट? तो यू हैव टू नो योर लिमिटेशंस, यू हैव टू नो द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ योर बॉडी एंड देन सीक प्रोफेशनल हेल्प rather than influencers. I think that's an important factor today which people need to understand. That's a very good point you have said, doctor, because हम इतना सुनते हैं ना, हमारा तो अभी आउटसाइड वर्ल्ड के साथ बहुत कनेक्शन ज़्यादा हो गया। जो भी बाहर से आ रहा है वही हमारे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन के तौर ही आ रहा है कि ओ ही इज़ सेइंग दैट, एवरीबडी इज़ वाचिंग हिम और इतने व्यूज़ हैं, चलो ये बहुत करेक्ट है। हम उसमें ना जाए तो बेटर है कि हम सबसे पहले अपना जो शरीर है उसको जाने, क्या हमारी कमी है, खुद तो थोड़ा बहुत तो हमें समझ है, फिर उसके लिए हम एक प्रोफेशनल के पास जाके एक हेल्प लेके, at all we need this to do a crash diet or a intermittent fasting. crash diet की ज़रूरत नहीं है। I think even in India today we are still a very religious and a spiritual community. आप अपना व्रत ही कर रहे हो, वो भी एक intermittent fasting एकदम जो आप हमारे पूर्वज ने सिखाया, चाहे वो मराठी हो, बंगाली हो, पंजाब हो, सिख हो, क्रिश्चियंस हो, सब में फास्टिंग था ही तो है, राइट? So I think it is there. You just didn't acknowledge it. But since it is being packaged in a new way, you feel the Western food dieting is much more important. एकदम ये तो रीपैकेजिंग ही हो रहा है सब चीज़ का। हमारी सिखा हुआ चीज़ को वर्ल्ड ले रहे हैं, हाँ एकदम, और वर्ल्ड हमें उसको दोबारा दे रहे हैं और हम कितने फुलिश होके उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपनी तबीयत को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे बहुत प्रसिद्ध गुरु रामकृष्ण जी, he was an ascetic. He used to do fasting. If you see all his photographs today, he's a very lean, thin man. Right. But do you think he was obese? No, he was not obese because there was discipline. There was an understanding of what his body needs. I think understanding your body is the most important part of your process for growth. अपने आप को नहीं समझा तो क्या समझा? जी बिल्कुल। एक खास पॉइंट में आपके साथ आज बातचीत करना चाहेंगे, जो मिरेकल ड्रग्स के नाम से बहुत अवेलेबल है मार्केट में, और खासकर ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो अचानक बहुत मोटे दिखते थे, अचानक बहुत पतले दिख रहे हैं, 6-8 महीना 1 साल के बाद अचानक उनका पूरा शरीर शक्ल एकदम काया पलट गया। नाम भी हमने कुछ कुछ सुना है, जैसे मोंजारो, ज़ेम्पिक, इसके नाम से हाँ ये सब आ रहे हैं आजकल। इसके लिए आप बताइए क्या है ये? देखिए, जो ये ड्रग्स हैं ये पहले भी थे, दे वर सेमीग्लूटाइड एंड ट्रिपेटाइड, ये शुगर के लिए यूज होते थे, राइट? तो दिस वाज एन आर्मामेंटेरियम फॉर डायबिटिक्स।
बट रिसर्च के दौरान उन्होंने ये पाया कि ये जो ड्रग्स हैं हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड GLP-1 जो इंसुलिन सेक्रेशन को बढ़ा देता है। ज़्यादातर जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं उनमें इंसुलिन सेक्रेशन कम हो जाती है, तो जो सेंसिटिविटी है कम हो जाती है, तभी तो आप डायबिटिक बनते हैं। और ये जो ड्रग्स हैं ये इस पैंक्रियाटिक सेक्रेशन को बढ़ा देते हैं। तो रिसर्च तो यहाँ से शुरू हुआ, बट दे ऑल्सो फाउंड आउट कि इससे वेट लॉस भी काफ़ी हो रहा है। सो अगेन नाउ बिकॉज इट हैज़ अ ड्यूअल मैकेनिज्म, शुगर भी कम हो रहा है और वेट लॉस भी हो रहा है, इट स्टार्टेड मार्केटिंग दिस एज अ वेट लॉस ड्रग्स। हालांकि इसमें काफ़ी रिसर्च है, देयर आर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज, देयर आर लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, एंड इंडिया में भी अब ये पहुंच गए। विगोवी है, ओजेम्पिक है, मंजारो है, ये ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं, एंड some of them have got good results. But at the end of it, any chemical which is being influenced and triggering your brain and your other organs will certainly have side effects कहीं ना कहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत रैम्पेंट यूज़ हो रहा है, और बिना एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करते हुए, बेसिकली एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो आपके डायबिटिक स्पेशलिस्ट होते हैं, अगर आप उनके निगरानी में अंडर देयर सुपरविजन इसको कंट्रोल्ड सिस्टमिक डोज से आप लें, तो आई थिंक इट इज़ बेनिफिशियल। बट देखा जा रहा है इट इज़ रैम्पेंट इन लॉट ऑफ एरियाज जहाँ पे ये बहुत easily अवेलेबल मिल रहा है फ्रॉम द वेंडर्स विदाउट अ सुपरविजन, एंड पीपल आर इंजेक्टिंग विद देम, एंड ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम दे आर हैविंग कॉम्प्लिकेशंस। A dreaded complication is pancreatitis, जो एक ऑर्गन है जो इंसुलिन या बीटा सेल सेक्रीट करती हैं, और अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए या सीवियर पैंक्रेटाइटिस हो जाए, 1 out of 10 पेशेंट्स कैन लैंड अप इन द ICU, जो जानलेवा भी हो सकती है। सो वर्ड ऑफ प्रिकॉशन, सब कुछ अच्छा है, लेकिन निगरानी में, अंडर सुपरविजन, अंडर द करेक्ट सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर, दीज ड्रग्स कैन बी यूज्ड। बट अगेन व्हेन इट कम्स फॉर प्योर वेट लॉस, ओबेसिटी के लिए ये एक हद तक वेट लॉस कर सकता है, मे बी जस्ट 11 to 12%। जिस दिन आप इसको बंद करेंगे तो ऑब्वियसली इफेक्ट खत्म होगी, यू विल रीगेन योर वेट। सो एज एन ओबेसिटी सर्जन आई फील कि जो ये लोग लेते हैं ये सोच के कि वेट लॉस होगा, करेक्ट वेट लॉस तो होगा, करेक्ट वो होगा, बट यू विल नॉट अचीव योर पीक इफेक्ट, मे बी जस्ट 10 to 11% ऑफ योर एक्सेसिव वेट, एंड देन यू हैव टू कंटिन्यू दिस मेडिसिन। इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स अभी तक रिसर्च में नहीं है। जो लोग 6 साल लेंगे या 3 साल लेंगे, उसके साइड इफेक्ट्स तो अभी भी पब्लिश नहीं हुए। शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स के आ गए हैं हमारे पास। तो एक तो आई थिंक इट हैज़ टू बी यूज्ड विद कॉशन, नॉट एवरीबडी इज सूटेबल। कि सपोज आप 80 kgs हैं और आपको लग रहा है मैं ओवरवेट हूँ, मैं इंजेक्शन ले लेती हूँ, दैट इज़ नॉट द वे। इट हैज़ टू बी डन अंडर सुपरविजन थ्रू अ डॉक्टर, एंड आई डोंट रिकमेंड इट फॉर जस्ट ओबेसिटी। अगर आपके कोमॉर्बिड डिजीज़ हैं, जैसे आपको डायबिटीज़ भी है और ओवरवेट भी है, तो शायद ये थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा, बट प्योर ओबेसिटी के लिए इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। बिकॉज फॉर दैट, जैसे मैंने आपको पहले भी इस पॉडकास्ट में बताया था कि एक थर्मोस्टैट है, थर्मोस्टैट का सेट पॉइंट आ गया है, ये वापस नहीं जा रहा, ओनली सर्जरी विल हेल्प। सो आई थिंक दैट शुड आंसर द क्वेश्चन वेदर दीज मिरेकल ड्रग्स आर गुड, रियली मिरेकल, ये तो वक्त ही बताएगा। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी आपसे, ये डायबिटीज़ रिवर्सल, ये क्या आपका ऑपरेशन के थ्रू हो सकता है? ये जो आप लोग, आई थिंक यू आर अ डॉक्टर, बिकॉज इतना नॉलेज तो किसी के पास भी नहीं है। आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। आपने सही कहा, सही सुना। आजकल डायबिटिक रिवर्सल या डायबिटीज को बंद करने के लिए भी सर्जरीज आ रही हैं, जो हम कर रहे हैं। At Mash Hospital, we are doing roughly 280 surgeries per month, out of which we are doing a lot of bariatric surgeries and orthopedic surgeries, urology surgeries. मैं खासकर bariatric surgeries या मोटापे को कम करने की जो surgeries हैं, हमारे पास 2 प्रकार की surgeries हैं। एक होता है resectional और एक diversional। resectional का मतलब है एक चीज़ को कम करना, और एक होता है डाइवर्जन, मतलब जैसे एक ट्रैफिक ज़्यादा है तो आपने फ्लाईओवर बना दिया, तो हम उस प्रकार के ऐसे सोचें। ये 2 सर्जरीज मिलके
वेट लॉस को ख़त्म कर रहा है। ये दोनों सर्जरीज मिलके एक डायबिटिक पेशेंट को अगर 10 मेडिसिन चल रहे हैं तो वो 3 या 4 पे आते हैं, और कुछ केसेस में ये बिल्कुल ख़त्म भी हो रहे हैं। यू हर्ड मी राइट, इट इज़ ऑल्सो बीइंग ट्रीटेड फॉर डायबिटीज़। बेरियाट्रिक सर्जरी पहले हम बोलते थे वेट लॉस सर्जरी है, बट आजकल द टर्म यूज्ड इज मेटाबॉलिक सर्जरी। इसका मतलब जो वेट से मेटाबॉलिज्म खराब हो रखा है, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, इन चीज़ों को ये ख़त्म कर रहा है इस सर्जरी से। सो जो हम गैस्ट्रिक बाईपास बोलते हैं, तो बेसिकली क्या होता है इस सर्जरी में, जो आपका स्टमक का हिस्सा है हम उसको छोटा करके छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन को उसको जोड़ देते हैं। इसको हम गैस्ट्रिक बाईपास कहते हैं या मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। इससे क्या होगा, मतलब एक आप अगर इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट को जोड़ देंगे स्टमक तो स्टमक का, खाना जो है वो बहुत जल्दी ट्रांसमिट होगा मेट्रो स्टेशन की तरह, और वो जो अच्छे हार्मोन्स हैं, इंक्रेटिन्स हैं, जीएलपी है, जीपी1 है, जीआईपीज है, ये हार्मोन सडनली आपके बॉडी में इन्फ्लक्स शुरू हो जाएगा, भूख कम करना शुरू हो जाएगा, और आपके जो ये हार्मोन्स हैं, जो गट हार्मोन्स हैं, ये आपके सारे खाने को मेटाबोलाइज करेगा, और इसी से आपकी पैंक्रियाज, जो इंसुलिन, जो बीटा सेल्स हैं, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी। तो जाहिर सी बात है शुगर कम हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, शरीर का वेट कम हो जाएगा, शुगर कम होगा। ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 years वी हैव सीन कि शुगर प्रैक्टिकली खत्म हो गया है पेशेंट्स में। दे आर लॉट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च पब्लिश्ड by surgeons, by doctors all over the world, that metabolic surgery is also the answer for diabetes today. In fact, 2016 World Forum में International Diabetic Federation ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी, जिसमें सर्जन्स को बुलाया गया था अपने डेटा को प्रस्तुत करने के लिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2017 में IDF, which uses all the federations of diabetes in the world, including Diabetic Indian Society, have told that bariatric metabolic surgery is also an option to cure diabetes today. So ये लोगों के पास इसकी खबर है? I don't think ये खबर है, but आज लाइफ एंड लिविंग के माध्यम से we will be touching a lot of lives today. मैं शुक्रगुजार हूँ ज्योतिदा और आपको कि you have given me this opportunity to speak on metabolic surgery. We are transforming lives, but with a shorter limit span, with a shorter reach. Organically, a patient will tell the other patient, but with today's podcast, we'll be reaching to millions of people to tell that today in Delhi there is a surgery जो आपके मोटापे को कम करेगा और एक आपके डायबिटीज को भी क्योर कर सकता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पॉइंट टुडे कि वी आर नॉट ओनली टॉकिंग ऑफ सिंपल बेरियाट्रिक सर्जरी, दिस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेटाबॉलिक सर्जरी। आप ये सोचिए, तो वी हैव लॉट ऑफ डेटा, इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, it is being used incidentally, and I'll tell you a very small history about it since we are talking on this. 1925 में पहली बार एक सर्जरी एक सर्जन ने की थी, जिसमें पेशेंट को स्टमक में कोई ट्यूमर था, तो उन्होंने बाईपास किया था, और पेशेंट को डायबिटीज़ था। इंसिडेंटली पता चला कि 6 साल बाद उसका जो डायबिटीज़ है वो ख़त्म हो गया, जो मेडिसिन वो ले रहे हैं वो बंद हो गया। अगर आप देखें, अगर आप लॉजिकली सोचें, डायबिटिक पेशेंट्स मरते दम तक शुगर के मेडिसिन ले रहे हैं, क्योर नहीं हुआ, ऑप्टिमाइज हो रहा है। बट मेटाबॉलिक सर्जरी से जो क्योर नहीं मिल रहा था वो आपको मिल रहा है। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल इम्पॉर्टेंट मैसेज टुडे दैट इसको घबराइए नहीं, टेक इट एज एनी सर्जरी, एंड स्पेशली एट मैच विद 3D सर्जरी। ये सर्जरी हम 45-50 मिनट में कर लेते हैं। अगले दिन आप नॉर्मल अपना पानी वगैरह पी रहे हैं, उठेंगे, चलेंगे, घूमेंगे, ऑफिस आप जाएंगे, और अपने डायबिटिक स्पेशलिस्ट से संपर्क में रह के ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year 2 year हम ये शुगर को कम करते 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 हो सकता है आपका शुगर गायब ही हो जाए। सर, हमने हार्ट बाईपास का तो सुना है, स्टमक की बाईपास पहली बार सुन रहे हैं, और होप ये हमारे ये इस पॉडकास्ट को लोग बहुत ही गौर से सुने, क्योंकि आपकी जो इम्पोर्टेंट बातें हम एंड तक कर रहे हैं वो ज़रूर एंड तक सुने, और फ़ायदा उन्हीं को रहेगा जो पूरी ये पॉडकास्ट सुनेंगे। फ़ायदा ना भी रहे, बट आई थिंक लाइफ एंड लिविंग के
माध्यम से हम एटलीस्ट एक सेंटेंस बोल सकते हैं कि एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल, इवन डायबिटीज. जो हम बोलते हैं कि डायबिटीज इज नॉट इन योर कंट्रोल, इवन टुडे diabetes also can be in your control if you have the right approach, right lifestyle, you're not overweight, and obviously metabolic surgery is transforming lives all over the world. ये बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेशन है जो आपने अभी दी, क्योंकि डायबिटीज़ के बाद किडनी फेलियर. जी. हाँ, ये तो आई थिंक थैंक यू वेरी मच, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप किडनी बता रही हैं, जैसे आपको पता है, हार्ट बता रहे हैं, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड अ मैक्रोवैस्कुलर एंड अ माइक्रोवैस्कुलर. मतलब जो आपके ब्लड वेसल्स हैं वो इफेक्ट होती हैं. तो ऑप्टिक न्यूराइटिस, आपका आंख जाना, आपके विजन कम होना, माइक्रो इन्वेजन इन योर किडनीज, ये सर्जरी के बाद ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये ना मतलब नहीं होंगे. सर, ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लोगों को मिलनी चाहिए फॉर देयर बेनिफिट. कि जाते जाते एक आपसे पूछूंगी, आप जब ओटी में घुसते हैं जी. आप तो बहुत सारे, आई मीन अगर हम डेटा लें तो इट्स लैक्स ऑफ ऑपरेशंस यू हैव डन. तो कितने फील्ड में किए हैं आपने? गॉल ब्लैडर स्टोन्स तो आप बोल रहे थे कि एवरी ऑल्टरनेटिव हाउस में ही भी तो एक है और वो आपने कर चुके हैं. तो उस समय आपके मन की स्थिति, आपकी माइंड में क्या चलती है जब आप ओटी में जाते हैं? एक नए लोग, Somebody's life in my hand. यस, आपके हाथ में होता है उनका भविष्य, उनका पूरा परिवार रो रहे होते बाहर कि कैसे होगा, और आप अंदर में वो डील कर रहे हैं. उस समय आपके मन में क्या होती है? बचपन से मुझे हमेशा एक अजीब सा कॉलिंग था टू हेल्प समबडी. आई मीन आई स्टिल रिमेंबर, अगर मेरे दादाजी वाज सफरिंग फ्रॉम एस्थमा एंड आई यूज्ड टू सी हिम ब्रेथलेस, तो मैं तब बैठे बैठे सोचता था, यार क्यों कोई ऐसी मशीन नहीं बनाई कि दादाजी के लंग्स को थोड़ा सा बेटर हो जाए. आई थिंक दैट कॉलिंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड आई ऑब्वियसली थैंक ऑन दिस पॉडकास्ट, आई रियली वांट टू थैंक माय मदर हु हैज बीन द बैकबोन फॉर एवरीथिंग इन माय लाइफ. उन्होंने हमेशा सोचा था कि सचिन को डॉक्टर बनाना ज़रूरी है. द वे शी हैज़ इन्फ्लुएंस्ड माई लाइफ, माई मदर वॉज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. एंड ऑब्वियसली माई जर्नी हैज़ लेड मी थ्रू लॉट ऑफ फेलोशिप्स, इंटरनेशनल फेलोशिप्स इन फ्रांस, फेलोशिप्स in bariatric, fellowship in advanced surgeries, 3D laparoscopic surgery. I'm the leading North Indian surgeon in 3D laparoscopy, which is my passion. I have been called on eminent platforms like yours, talk shows. So my journey has been extremely blessed with opportunities. But at the end of it, I'm a surgeon. And how does that transform is that मेरे हाथ में किसी का लाइफ है. So when I enter my OT, it is just not the patient. I'm also thinking of the people who are sitting outside. Right? And no matter what the surgery is, no matter what is going on in my life, no matter what chaos, the moment I step into my temple, my mind is calm. Because मैं अपने OT को एक टेम्पल की तरह ही मानता हूँ. तो every surgeon has got his totke, I presume. For me, I think every time I scrub, when I wash my hands prior to the surgery, I take a deep breath, and if you don't mind, I will tell a small secret. Every time I'm washing, I pray to Lord Venkateshwara and a mantra by Krishna, which if you don't mind, I would like to say. Vina Venkatesham Nanatho Nanath Sada Venkatesham Smarami Smarami Hare Venkatesham Prasiddha Prasiddha Priyam Venkatesham Prayacha Prayacha. So I say this line no matter if I'm doing surgery 10 times a day. The other is Om Krishna Vasudevaya Hare Paramatmane Pranata Kalesha Nashaya Govindaya Namo Namo. That means nothing should go wrong. This thing. So I think as your podcast is life and living, every day you have to live to understand life, so that life will also teach you how to live. So I think that is the mool mantra for everybody in whatever job you do, to keep calm and do your job passionate, honestly, dedication. And I think in today's world, empathy is a very important part of your practice. No matter where you reach the pinnacles of height, whether you're a junior doctor or senior doctor, you should understand that the patient who's coming to you is not coming out of free will.
वो अपने मन से नहीं आ रहा, दुख होके आ रहा है। अगर आप उसे बोले मॉल चले जाएं, पार्टी कर लें, बड़ा खुश होके करेगा। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ खुश होके नहीं आता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू हैव टू ट्रीट हिम नॉट द डिजीज। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, एंड आई थिंक दैट विल ओनली ट्रांसलेट इनटू सक्सेस फॉर योर सर्जरीज। आपके ये जो लास्ट जो इन बातों से मुझे लग रहा है कि देखो जो गोविंद है उसके हाथ में ही लाइफ है, वो गोविंद को हम प्रे करेंगे। और गुरु ग्रंथ, यस, सुप्रीम पावर, there और is some positive power always guiding you into your life. If you are going on a turn in a car and suddenly आपका मन करता है कि slow down, there is a benediction Yes. to it कि कुछ तो गड़बड़ है, तब that's why you slowed down. Right. So I think being a scientific man and balancing spirituality or a power is a very important process. It is an amalgamation of both. You have to be a good person to be a good surgeon, and a good surgeon to be a good person. राइट, वेरी ट्रू। डॉक्टर, जैसे हमने सुना है, गोविंद के नाम से मैं एंड करूंगी आज हमारे शो को, हर जन राखे गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद। सो हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ को इतना नेग्लेक्ट ना करें। अपने हाथ में बहुत कुछ होता है, अपने नॉलेज को बढ़ाएं। ज़्यादा बाहरी नॉलेज से इन्फ्लुएंस होके ऐसे कुछ अपने शरीर को हार्म ना पहुंचा दे कि हम ये भी देख रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, वो हमारे लिए ठीक है या ठीक नहीं है, वो परखें। हम जाएं, डॉक्टर्स हैं, हमारे गाइडेंस, हाँ, प्रोफेशंस हैं, गाइडेंस लें उनसे और अपने इस दिनचर्या को, जीवन को हम ठीक करें। सो हमारे इस लाइफ एंड लिविंग में आज डॉक्टर सचिन के साथ, डॉक्टर सचिन, आज हम बहुत अच्छे आपके, थैंक यू ज्योतिदा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी to reach out to your viewers, and I think it's a big privilege, and I hope that such health podcasts should continue through your medium. It would be wonderful, and thank you so much.